everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So today we are going to discuss about a very basic topic, that is about bases. Okay, we'll discuss about bases and its properties कि bases क्या होती हैं और उनकी properties क्या होती हैं, and we'll also discuss about the difference between bases and alkalis. Fine. So before starting this topic, I would like to introduce about our ongoing crash course in our offline center, in which we are covering the maths and science syllabus within 60 days, and we are also going to provide a test series that would give an analysis of your performance and your preparation, and that would help in the actual examination to help you score better. So the course is ongoing. Do reach us, do contact us. This is the address and these are the contact number. If you have any query, do reach us for sure. And at the same time, we have one more opportunity for those students who are moving from 11th to 12th. We are introducing a scholarship test for them. In that, will be giving some awards to the students who will perform extraordinary, and for those students who want to get enrolled, will provide them discount as per their score. So this test will be occurring in two phases, phase 1 and phase 2. Phase 1 is going to happen on 17th of December from the syllabus of 11th, and if you have any query regarding that, do contact us, and this is the address. You can reach us. Before the scholarship test, you have to visit our center and you have to fill the examination form. That's absolutely free. So let's move to the topic of today, that is bases and its properties. We'll talk about bases and its properties. तो base क्या होता है? So in general हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, the bitter tasting substances, the bitter tasting ingredients or the bitter tasting चीज़ें are called as bases. But does taste is only the determining factor of acid or base या salt? किसी के acid, base या salt होने का क्या सिर्फ टेस्ट ही एक इंडिकेटर है? नो, टेस्ट इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. लेट्स सी, इफ अ सब्सटेंस aqueous solution tastes bitter, it turns red litmus blue or neutralizes acid, it called a base. अगर कोई सब्सटेंस जब वो एक्वस फॉर्म में हो, मतलब उसमें अगर हमने पानी मिला दिया है, ठीक है, वो अगर टेस्ट कर रहा है बिटर यानी कि कड़वा, और वो एक रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे रहा है और साथ ही साथ किसी एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो हम उसे बेस कह सकते हैं. और एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जब किसी को हम बेस कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर उसे हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, इफ यू आर डिसॉल्विंग दैट इनटू वाटर, इट शुड बी डिसोसिएटिंग OH माइनस आयंस. It should be dissociating OH minus ions. When dissolved in water, dissociates to give OH minus ions. और जब हम acids की बात करते हो, तो acids में क्या होता है कि when dissolved in water, it dissociates H plus ions. और यहाँ क्या होता है? OH minus ions. These are the very basic examples of bases, that is sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide. इसमें आपने बहुत सारे reactions किए होंगे अपने स्कूल में. सो लेट्स सी, फिजिकल टेस्ट. तो किसी भी बेस को या एसिड को डिटरमाइन करने के लिए कुछ टेस्ट कंडक्ट करते हैं. कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ केमिकल टेस्ट होते हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल टेस्ट. सो देयर आर टू फिजिकल टेस्ट, एक तो टेस्ट और एक इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स बाय एसिड्स एंड बेसिस. तो टेस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे? अगर किसी सब्सटेंस का टेस्ट बिटर है, कड़वा है, तो हम उसे क्या कंसिडर करते हैं? Bases. But taste is always not a determining factor between different substances. Now talking about indicators. So indicator क्या होता है? Indicators are some chemical substances जो कि किसी एसिड या बेस के बारे में बताता है अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में. फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर में या ओडर में, ओडर यानी कि स्मेल, इन चीज़ों में अगर चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस का, जो कि एक इंडिकेटर है, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पे हम उसे इंडिकेटर कहते हैं. ठीक है. सो एन इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच शो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेनली कलर और ओडर, व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एन एसिड और बेस. एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे अगर ये केमिकल सब्सटेंसेस अपना कलर
या फिर अपना स्मेल में कोई चेंज ला रहे हैं, सो उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ये कैसा सब्सटेंस है। अब ये तो इंडिकेटर्स की बात हुई। सो वी हैव टू बेसिकली स्टडी अबाउट 3 इंडिकेटर्स। कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? एक होता है लिथमस, दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा होता है फिनोप्थिलीन। ठीक है, हमें इन बेसिकली 3 के बारे में पढ़ना है, और भी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लिथमस। ये जो लिथमस है ये 2 वैरायटी में आता है, एक रेड लिथमस होता है और एक ब्लू लिथमस होता है। जब एसिड की बात होती है, जब हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड एक ब्लू लिथमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, बट जब बेस की बात आती है तो वो क्या करता है, वो एक रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो लिथमस पेपर की 2 वैरायटीज आती हैं, एक ब्लू लिथमस, एक रेड लिथमस। एसिड करता है ब्लू लिथमस पे काम, वो ब्लू लिथमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेसिस क्या करते हैं, वो रेड लिथमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी एक रेड लिथमस पेपर किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में। अब मिथाइल ऑरेंज की अगर बात की जाए तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, जब मिथाइल ऑरेंज किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो इट टर्न्स इनटू अ कलर येलो। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? इट टर्न्स इनटू येलो कलर। नाउ फिनोप्थिलीन, जो फिनोप्थिलीन का एक्चुअल कलर होता है जब वो किसी चीज से रिएक्ट किया हुआ नहीं है, वो किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में नहीं है, उसका कलर व्हाइट होता है। लाइक इसका कोई कलर नहीं होता, नॉट इवन व्हाइट, इट इज कलरलेस, इट्स जस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट व्हाइट, ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा होता है, कोई कलर नहीं होता है। जब फिनोप्थिलीन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो कलरलेस का कलरलेस ही रहता है। बट जैसे ही फिनोप्थिलीन एक बेस के कांटेक्ट में आता है उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक में। उसका कलर किस में चेंज हो जाता है? पिंक में। तो फिनोप्थिलीन जब भी बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। फाइन। अब एक बहुत सिंपल येट जरूरी टर्म है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर का। जब एसिड और बेस के बीच में एक रिएक्शन होता है देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, और इसे ही हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A neutralization reaction occurs when an acid reacts with a base. Salt and water are the end products of this reaction. An acid-base neutralization reaction is formulated by double replacement reaction in this standard approach. So if talking about the neutralization process, it's simply the reaction between an acid and a base to give salt plus water as the end products. अब हम कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे कि जब बेसिस डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या बनता है। जब बेसिस का रिएक्शन होता है मेटल के साथ, जब कोई भी मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बनता है सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस एंड हीट इवॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaOH रिएक्ट कर रहा है Zn यानी जिंक मेटल के साथ, NaOH is a base जो रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, तो क्या बन रहा है? Na2ZnO2 which is a salt, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और कुछ हीट भी उसमें से इवॉल्व हो रहा है, कुछ हीट भी उससे इवॉल्व हो रहा है। So if talking about this reaction, NaOH यानी कि sodium hydroxide when reacts with zinc metal, sodium hydroxide when reacts with zinc metal, it produces a salt that is sodium zincate, and hydrogen gas is liberated out and also evolves some amount of heat. Fine. अगला reaction. The next reaction is about a reaction of non-metallic oxide with base. Non-metallic oxide जब base के साथ react करते हैं तो क्या होता है? Non-metallic जो non-metals का oxides होते हैं, the oxides formed with non-metals are the non-metallic oxides. For example, carbon dioxide, simple carbon dioxide, sulfur dioxide, these are the examples of non-metallic oxides. ठीक है, तो जब एक base यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या बन रहा है? तो बन रहा है एक सॉल्ट यानी कि सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 is sodium carbonate which is a salt, which is a basic
सॉल्ट, एक बेसिक सॉल्ट बन रहा है और साथ ही साथ वाटर रिलीज हो रहा है. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद अ बेस तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और वाटर इज रिलीज्ड. फाइन. अब पहले का ही जस्ट पहले हमने ये चीज मेंशन किया, द रिएक्शन ऑफ अ एसिड एंड अ बेस. तो अब रिएक्शन ऑफ ए एसिड एंड अ बेस इज सिंपली टर्म्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो क्या होता है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस water. A very common acid is hydrochloric acid. The reaction between strong acid, says HCl, hydrochloric acid, and strong base, say sodium hydroxide, forms salt plus water. ठीक है. HCl, hydrochloric acid, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? NaCl. दिस इज अ कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज एट होम. एंड साथ ही साथ क्या बनता है? वाटर. एंड दिस वाटर इज लिबरेटेड आउट. सो दीज वर द few reactions of bases with different substances. And the very last topic of today is the difference between base and alkali. एक alkali और एक base में क्या difference होता है? ठीक है, देखते हैं point wise. Bases undergoes neutralization reaction with acid. Bases acids के साथ neutralization reaction करते हैं और salt और water form करते हैं. ठीक है. They are comprised of metal oxides. They are comprised of metal oxide, metal hydroxide, metal carbonates, and metal bicarbonates. They are made of these compounds. They are usually these compounds, and most of them are insoluble in water. Most of them are insoluble in water. Bases ज़्यादातर water में insoluble होते हैं. ठीक है. अब वहीं अगर alkalis की बात की जाए तो alkalis are the aqueous solution of bases. मतलब बेसिस जब वाटर में मिक्स हो जाते हैं, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज कॉल्ड एज अल्कली. बट हर बेस अल्कली नहीं होता है क्योंकि हर बेस सॉल्यूबल नहीं होता है पानी में. इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड डिसोसिएट टू गिव OH माइनस आयंस. ये जो बेसिस होते हैं जब पानी में, जो स्पेसिफिकली अल्कली होते हैं, जो सॉल्यूबल होते हैं, जब भी पानी में डिसॉल्व होते हैं तो OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं. ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कली. हर अल्कली, जो भी अल्कली होता है वो क्या होता है? जो बेसिस सॉल्यूबल होती है पानी में. बट हर बेस अल्कली नहीं होता है. हर अल्कली बेस तो होता है, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज, क्योंकि हर बेस पानी में सोल्यूबल नहीं होता है. एंड ये जो बेसिस जो यूजुअली पानी में सोल्यूबल होता है वो होते हैं मेटालिक हाइड्रोक्साइड. मेटालिक हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल अब मान के चलो NaOH. NaOH is a metallic hydroxide and it is soluble in water. और एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो calcium hydroxide. Calcium is also a metal. Calcium hydroxide. Fine. So this is the basic difference between bases and alkalis. So that was it for today. So अगर आपको कोई भी डाउट हो तो do let me know in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो do hit the like button and do subscribe the channel. And I would recommend you to surely join our crash course. We have the best faculties over here who are teaching you offline and are always available for you for clearing every doubt of yours. So do reach us, do contact us, and please join this crash course. It is ongoing, it is live, and all the very best. Keep learning, keep growing. Thank you so much.